Hello everyone, hope you understand previous chapter power sharing. So today we are going to start a new chapter federalism. And our today's topic is what is federalism, and today's main topic is federal form of government and a unitary form of government. So before the starting of this chapter, there is some main topics of this chapter. So we've discussed these topics in this chapter. First topic is what is federalism. Second topic, what make India a federal country. Third, how is federalism practiced, and decentralization in India. All these topics we will discuss in this chapter. So let's start this chapter. There is overview about this chapter. In the previous chapter, we noted that vertical division of power among different levels of government is one of the major forms of power sharing in modern democracies. As we discuss about that, vertical division of power sharing is a major form of power sharing in modern democracies. So in this chapter, we focus on this form of power sharing. In this chapter, we discuss vertical division of power sharing in detail. In most commonly referred to as federalism. This form of power sharing is referred as federalism. We being by describing federalism in general terms. Here we discuss general terms of power share federalism. The rest of the chapter tries to understand the theory and practice of federalism in India. एंड द रेस्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया. A discussion of the federal constitutional provision is followed by an analysis of the policies and politics that has strengthened federalism in practice. एक डिस्कशन करेंगे हम फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस पे, जो कि कैसे वो फॉलो किया जाता है, एंड एनालाइज करेंगे पॉलिसीज़ को एंड पॉलिटिक्स को, जो कि बाय द प्रैक्टिस फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बना रही हैं. एंड द एंड ऑफ द चैप्टर वी टर्न टू द लोकल गवर्नमेंट, एंड एंड ऑफ द चैप्टर वी डिस्कस अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, अ न्यू थर्ड टेयर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, जो कि क्या है, एक न्यू थर्ड टायर है इंडियन फेडरलिज्म का, विच इज़ नोन बाय लोकल गवर्नमेंट लाइक अवर पंचायत, ग्राम सभा, म्यूनसिपैलिटीज. दिस ऑल कम इनटू द लोकल गवर्नमेंट. सो नाउ कम टू द टॉपिक. टॉपिक इज व्हाट इज फेडरलिज्म. फेडरलिज्म क्या है? सो लेट अस गेट बैक to the contrast between Belgium and Sri Lanka that we saw in the last chapter. In last chapter we saw the case study of Belgium and Sri Lanka. You would recall that one of the key change made in the constitution of Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to the regional government. आपने देखा, याद हो आपको कि कैसे एक चेंज ने बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर को रिड्यूस करके रीजनल गवर्नमेंट को दे दी थी, एंड जो रीजनल गवर्नमेंट इसकी पावर को इंक्रीज कर दिया था. रीजनल गवर्नमेंट एग्जिस्टेड इन बेल्जियम इवन अर्लियर. जो रीजनल गवर्नमेंट थी बेल्जियम में वो पहले भी एग्जिस्ट करती थी. दे हैड देयर रोल एंड पावर्स, बट ऑल दीज पावर्स वर गिवन टू दीज गवर्नमेंट एंड could be withdrawn by the central governments. एग्जिस्ट तो करती थी बेल्जियम में रीजनल गवर्नमेंट, बट उनकी अपनी पावर्स एंड रोल्स भी थे. बट जब सभी जो पावर्स थी ये सब उन्हें कहाँ से मिली हुई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट से. सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी उन्हें उन पावर्स को विड्रॉ कर सकता था, उनसे ले सकता था. सो द चेंज दैट took place in 1993 was that the regional government were given constitutional power that were no longer depend on the central government. So जो 1993 में जो अमेंडमेंट में चेंज हुआ
उसमें क्या चेंजेस हुए कि रीजनल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई, मतलब कि जो उनकी पावर्स है वो कहाँ रिटर्न थी, कॉन्स्टिट्यूशन में रिटर्न थी, दैट वर नो लॉन्गर डिपेंड। और इससे क्या हुआ कि वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं था। जो रीजनल गवर्नमेंट थी वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं थी। सेंट्रल गवर्नमेंट रीजनल गवर्नमेंट की पावर को विड्रॉ नहीं कर सकता था। रीजनल गवर्नमेंट अपनी पावर्स को प्रैक्टिस करने के लिए इंडिपेंडेंट थी। Thus Belgium shifted to a unitary to a federal form of government। तो इससे क्या हुआ कि जब बेल्जियम है वो शिफ्ट हो गया यूनिटरी गवर्नमेंट से किस और, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो पहले वहाँ पे क्या थी, यूनिटरी गवर्नमेंट थी। अब जबकि उसने क्या करा, पावर्स को शेयर कर दिया अलग अलग लेवल्स में गवर्नमेंट की, तो वो कौन सी, वहाँ पे कौन सी गवर्नमेंट आ गई है, फेडरल गवर्नमेंट। सो श्रीलंका कंटिन्यू टू बी फॉर ऑल practical purposes a unitary system where the national government has all the power। So in Sri Lanka all powers have national government। So Tamil leaders want Sri Lanka to become a federal system। तो तमिल लीडर्स जो है वहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि जो श्रीलंका है वहाँ पे भी कैसा सिस्टम आ जाए गवर्नमेंट का, फेडरल सिस्टम आए। So this is about Belgium and Sri Lanka। Now come to our main topic, what is federalism? So federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। So federalism क्या है, फेडरलिज्म एक फॉर्म है गवर्नमेंट की जहाँ पर पावर को डिवाइड किया जाता है, पावर को डिवाइड किया जाता है, बांटा जाता है सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी और उसके अलावा उसकी अलग अलग यूनिट्स में पावर को डिवाइड किया जाता है। जैसे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, देन लोकल गवर्नमेंट है ना। स्टेट की अलग गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल की गवर्नमेंट अलग होती है एंड लोकल गवर्नमेंट अलग होती है। सो again I repeat, federalism is a system of government in which the power is divided between a central authority and various constituent units of the country। Usually a federation has two levels of government। Usually कितने लेवल होते हैं इसमें, 2 levels होते हैं। One is the government for entire country that is usually responsible for a few subject of common national interest। वन गवर्नमेंट जो होती है, जो फर्स्ट लेवल होता है गवर्नमेंट का, वो क्या होता है, एंटायर कंट्री मीन्स पूरी कंट्री के लिए होता है। जैसे हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट। और ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये कुछ मेन सब्जेक्ट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल रहती है, जो कि क्या होते हैं, कॉमन नेशनल इंटरेस्ट के होते हैं, जो कि पूरे देश के इंटरेस्ट के होते हैं। उन सब्जेक्ट्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल रहती है। कौन सी गवर्नमेंट, जो पूरी कंट्री के लिए होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड सेकंड, द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट। सेकंड गवर्नमेंट जो होती है वो क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट, दैट लुक आफ्टर मच ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट। जो कि क्या है, डे बाय डे के एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं स्टेट के, उनको देखती है। सो फर्स्ट गवर्नमेंट होगी हमारी क्या, जो पूरी कंट्री के लिए होती है, और सेकंड गवर्नमेंट जो क्या है, किसी प्रोविंसेस के लिए, किसी स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बोथ दीज लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। और दोनों ही लेवल जो हैं गवर्नमेंट के, वो अपनी पावर्स को इंडिपेंडेंटली इंजॉय करते हैं। कोई भी किसी के लिए आंसरेबल नहीं है। इन दिस सेंस फेडरेशन आर कॉन्टेस्टेड विद यूनिटरी गवर्नमेंट। यहाँ पे जो फेडरेशन गवर्नमेंट है वो यूनिटरी गवर्नमेंट से अलग होती है। अंडर द यूनिटरी सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो यूनिटरी गवर्नमेंट है इसमें सिर्फ एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, और द सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर सब यूनिट्स होती हैं तो वो क्या होती हैं, सबऑर्डिनेट होती हैं किससे, सेंट्रल गवर्नमेंट से। इन यूनिटरी गवर्नमेंट ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट।
सिर्फ एक ही लेवल होता है गवर्नमेंट का, और वो अगर सब यूनिट्स होंगी भी तो वो क्या होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट से बॉर्डिनेट होती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास ऑन ऑर्डर टू द प्रोविंशियल और द लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर पास कर सकती है लोकल गवर्नमेंट के लिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लिए। कहाँ पे होता है, यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। बट इन फेडरल सिस्टम द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट टू डू समथिंग। बट इन फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कोई भी ऑर्डर पास नहीं कर सकती है, किसके लिए, स्टेट गवर्नमेंट के लिए। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ powers of its own for which it is not answerable to the central government। स्टेट गवर्नमेंट के पास अपनी ऑन पावर्स होती हैं और वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल नहीं होती है। कुछ स्पेसिफिक मैटर्स तो ऐसे होते हैं जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही उन सब्जेक्ट को देखती है, उसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट होती हैं उनके पास अपनी पावर्स होती हैं। सो बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। दोनों ही गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, कहाँ, फेडरल गवर्नमेंट में, वो सिर्फ किसके लिए आंसरेबल होते हैं, टू द पीपल। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर इज अ क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। What is the main difference between a federal form of government and a unitary one? Explain with an example. What is the main difference between a federal form of government and a unitary one? Explain with an example. You have to give answer of this question.